Okay, so these are the examples of hydration of ions. So whenever they say hydration of ions, by default you have to write gaseous ion on this side. So please take care of the states. Okay, now going ahead with the next one, lattice enthalpy. Delta H lattice. Now see, lattice enthalpy is what? Now there are two ways of defining this, but we will stick to one particular definition. We will stick to this definition. When 1 mole of a solid compound, when 1 mole of a solid compound is formed, that means this is being formed, so this will be on the right hand side of the arrow. So when 1 mole of the solid compound is formed, from its ions in gaseous state, energy is released. Please remember that if you are forming 1 mole of an ionic compound from its gaseous ions, energy is going to be released. And this enthalpy change is called lattice enthalpy. So write down the definition. So if you want to represent an equation or a chemical reaction for formation of lattice, then the compound must be on the right hand side of the arrow. And there should be only 1 mole of the compound. And the delta H is going to be negative. So delta H lattice will be written as a negative value. Why? Because energy is released. Why is energy released? Energy is released because we are forming 1 mole of a compound from its ions. That means the ions have combined with each other. And those ions combined in the gaseous state. So gaseous ions were taken, they combined, and then energy was released, so that a compound in the solid form could be formed. So basically potential energy is how, you know. Exactly. So in chemical bonding, you have done that curve, right? At infinite distance, right? Then at a distance when the repulsions are balanced by the attractions, and when the attractive force is more than the repulsive force, a bond is formed at potential energy value. Same thing. So here, if you look at the value of enthalpy, it will be a negative value. Please remember this. That is why I'm trying to highlight this again and again. अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव, अगर आपको मानो पॉजिटिव वैल्यू देके रखा है क्वेश्चन में लैटिस एंथैल्पी का, तो भी आप उसको नेगेटिव करके ही लोगे. प्लीज रिमेंबर दिस, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आयंस. तो आप उसका नेगेटिव वैल्यू ही हमेशा लोगे, चाहे वो क्वेश्चन में पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे. सर पॉजिटिव दिया मतलब वो ब्रेक हो रहा है, तो फिर नेगेटिव क्यों लेंगे? नहीं, हम लोग का डेफिनेशन तो यही है ना कि 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, तो तुम तोड़ोगे क्यों फिर? सर पर लैटिस एंथैल्पी मतलब दोनों हो सकता है ना. तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, वी विल स्टिक टू वन डेफिनेशन. हमें क्या करना है, नेगेटिव वाला डेफिनेशन चुनना है. अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव भी दिया रहेगा तो भी हम लोग नेगेटिव ही लेंगे. ओके, सो रिमेंबर दिस, वी आर नॉट सपोज्ड टू टेक एनी पॉजिटिव वैल्यू हियर. हम लोग हमेशा उसको नेगेटिव ही लेंगे, चाहे क्वेश्चन में नेगेटिव साइन दे या ना दे. कीप दिस इन माइंड. ओके, अदरवाइज वी विल गो रॉन्ग. सो क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दे, वो हमें नेगेटिव करके ही लेना है. So don't expect them to give you the negative sign. If they give you, it's okay. Even if they don't give you, we will take it as a negative value. So delta H is always negative if
if it is lattice enthalpy. Okay, write down the definition and then we will do some examples. So you have to write down the solid compound on the RHS of the arrow. And the gaseous ions must be written on the left-hand side of the arrow. That is the convention. And the value of delta H will be negative. सर मतलब सॉलिड कंपाउंड एलएचएस पे नहीं लिख सकते? नहीं ले सकते, करेक्ट. तो ये सब इक्वेशंस है. Now examples of the reactions. First one, if I am forming magnesium chloride, तो उसका लैटिस बनने के लिए मुझे ये वाला रिएक्शन लिखना पड़ेगा. So if you look at this, this is a gaseous ion, this is also a gaseous ion. And this is the solid species. और इसका 1 मोल लिखना जरूरी है. इसमें आप 2, 3 कुछ नहीं कर सकते. It has to be 1 मोल. These are the examples. So every compound will be on the product side, and only 1 mole of the product has to be written. Accordingly, you will have to balance the reactants, but you cannot change the coefficient of product. The product has to be taken as 1 mole. So these are the examples representing formation of lattice. Write down the examples. Okay, done. Now one important point comes, which you must have learned. Tell me now, I'm asking the question. When is an ionic compound soluble in water? What is the condition for an ionic compound to be soluble in water?
You must have done this. There aren't all ionic compounds soluble. Yes, sir. No, We all ionic compare compounds on are the not soluble basis in water. of ionic characters. So if the compounds are But ionic, polar then होने they should be चाहिए. soluble. ऐसे ऐसे जो तुम लोग बोल रहे हो वो कभी कभी सच होते हैं, हर टाइम सच नहीं होते हैं. व्हाट इज द कंडीशन? आई एम सेइंग कंडीशन क्या है सॉल्युबल होने के लिए पानी में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं नहीं, इट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए. करेक्ट. सो इट इज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो अगर सर लैटिस एंथैल्पी से भी कुछ होता है. हाँ, तो भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन द लैटिस एंथैल्पी, देन इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर. सो दिस इज अ कंडीशन. तो ये आपको बताना चाहिए. ओके, मॉड्यूलस लिया है मैंने. ये मॉड्यूलस वैल्यूज है. कंपैरिजन के लिए मॉड्यूलस वैल्यू लेना है. So if a greater amount of energy is released on hydration of something as compared to the lattice that was formed, then it will be soluble in water. So this is a condition. Okay. सर दोनों एक्सोथर्मिक ही है ना? हाँ, बिकॉज हम लोगों ने लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन ऐसे किया है ना कि 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स gaseous ions. तो इसके लिए एक्सोथर्मिक होगा लैटिस एंथैल्पी. लेकिन इस केस में एक्सो एंडो का फर्क नहीं पड़ेगा कि मॉड लिया है ना हमने. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन मॉड. इसके लिए मैंने मॉड दिखा दिया है ताकि कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो. मॉड लेके ही करो आप तो बेटर रहेगा. All right, now this is the next point. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि in water will this substance behave as an ionic compound or a covalent compound? तो उसके लिए ये वाला क्राइटेरियन है कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब मॉडुलस वैल्यू ज्यादा है, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है हाइड्रेशन के प्रोसेस से एज कंपेयर टू आयनाइजेशन के लिए जो चाहिए था, देन द सब्सटेंस विल बी आयनिक इन वाटर. मतलब वो आयंस में स्प्लिट हो जाएगा पानी के अंदर. तो वो भी सॉल्युबल ही हुआ ना. हाँ, सॉल्युबल कितना है वो भी कैन नॉट जज. उसके लिए तो मेरे को यही देखना पड़ेगा. उसके लिए तो एग्जैक्ट लैटिस एंथैल्पी चाहिए. फिलहाल मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि वो आयनिक है या कोवैलेंट है. बिकॉज अगर कोई चीज आयनिक हो गई तो वो आयंस में स्प्लिट कर रही है कि नहीं कर रही है? ऑब्वियसली कर रही है, बिकॉज इट्स आयनिक, मतलब वो स्प्लिट करना चाहिए आयंस में. तो वो पानी के प्रेजेंस में क्या वो स्प्लिट हो रहा है? That we have to check. Now, what is ionization enthalpy? Delta H ionization क्या है? What is सर ये पॉइंट ionization? नहीं समझा. What is ionization enthalpy? पहले ये बताओ.
सर इलेक्ट्रॉन लूज कर। सर मतलब कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। हाँ, एग्जैक्ट। तो if I have to remove one electron, that is the ionization enthalpy. अगर मुझे तीन इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो पहले एक करूंगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो मतलब क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। that sum of the three ionization enthalpies will give me the total value of energy that I'll have to supply in order to take out 3 electrons from a gaseous atom. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या है, एक्सो है कि एंडो है? एंडो एंडो है, because we are supplying energy to take out the electron. But the point here is that आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा आयन बना रहे हो। मतलब क्या, whether it is a monovalent ion or a divalent ion or a trivalent ion. Like I said, अगर monovalent ion है तो एक ही बार ionization enthalpy आएगा, which is called first ionization enthalpy. If you are taking out the second electron, तो पहले ये और फिर ये, so this will be the second ionization enthalpy, which means कि अगर मैं ये बोलूं कि A से A2 प्लस कन्वर्ट करने में कितना एंथैल्पी चाहिए, इट विल बी दिस प्लस दिस। तो वो देखना पड़ेगा कि आप आयनाइजेशन किसका कर रहे हो, कहां तक पहुंच रहे हो। अगर यहां तक पहुंच रहे हो तो फिर द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयनाइजेशन विल बी दिस प्लस दिस, I1 plus I2. Similarly, if I want to form this, again I'll have to supply some energy. तो यहां से यहां जाने के लिए कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट, ऐसा होगा। तो वो देखना पड़ेगा कि कौन सा आयन बना रहे हो। Okay, let's do questions. So clear हो जाएगा। First question. Try to solve this question now. I'll give you around 3 to 4 minutes to solve. First, given delta H these all are given to you. Question ये है, find out
So this is the question. Start solving. सर जो क्लोरीन है मतलब उसको हम गैसेस फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं। हाँ वही करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं बोला है मतलब, कुछ नहीं बोला है मतलब स्टैंडर्ड स्टेट्स आपको अज्यूम करने हैं हमेशा। Find out the enthalpy change involved in the conversion of 1 mole of gaseous chlorine to chloride in water. और इसको क्या बोल सकते हैं? Aqueous chloride. ऐसा बोल सकते हैं। Start.
Okay, so let's see what all things are given to us. No, answers are wrong. Whatever answers you all have sent me are wrong. देखो पहले जो इक्वेशन है वो फॉर्म करो. So, equations, answer. इक्वेशन नंबर 1 क्या है? डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन. मतलब क्या? डिसोसिएट करूंगा क्लोरीन को मैं, जिसको डिसोसिएट करते हैं उसका हमेशा 1 मोल लिया जाता है. If I dissociate this, I will get what? This. यानी एटम्स मिलेंगे. डिसोसिएशन इज नथिंग बट बॉन्ड को तोड़ रहे हैं ना. I've told you bond energy is nothing but the energy that is required to break anything into its gaseous atoms. इसका डेल्टा H1 कितना है? इसका डेल्टा H1 देख रखा है 240 किलोजूल. सेकंड इक्वेशन, enthalpy of hydration of chloride -381. हाइड्रेशन आज ही सीखा हम लोगों ने क्या होता है. कोई आयन का हाइड्रेशन मतलब उसका गैसियस फॉर्म में लेना है उसको और यहाँ पे डालना है. तो पहले हम इजी वाला करेंगे ना. I'm just writing whatever things are given. This will be the process representing the hydration of chloride. Because hydration में गैस होना चाहिए आयन का और aqueous होना चाहिए आयन का on the right hand side. This is given as this. Third, electron gain enthalpy of Cl. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता है पहले से क्या होता है. वन एटम should be present in the gaseous form and I will add one electron to the neutral gaseous atom to create gaseous anion. This represents electron gain enthalpy. -349 kilojoule. हो गया. नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दैट विल बी माय टारगेट इक्वेशन. सो टारगेट इक्वेशन, टारगेट what is my target equation? Target equation is what? Target equation will be what the question has asked me to find out. What has the question asked me to find out? 1 mole of gaseous chlorine to chloride ion. मतलब क्या? 1 mole of gaseous chlorine to chloride ion in aqueous form. मतलब ये मुझे निकालने के लिए बोला है. दिस इज माय टारगेट इक्वेशन. टारगेट इक्वेशन लिखना आना चाहिए. इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन किया था. क्या है टारगेट इक्वेशन? देखो क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन टू क्लोराइड इन वाटर. तो वही है, यहाँ पे वही लिखा है मैंने. 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन है और बाकी क्लोराइड एंड एक्वस में. इसका 1 मोल चाहिए बोला है, 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन. तो मतलब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा. नाउ इट इज द करेक्ट टारगेट इक्वेशन. टारगेट इक्वेशन तक पहुंचो अभी. So I can say that let this equation be equation 4. Okay. और यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या लिखूंगा? डेल्टा H4.
पूछा है मुझे डेल्टा एच को। Tell me, how will I arrive at 4 using 1, 2 and 3? Use Hess law. पहले 1 चाहिए क्योंकि 1 में यहाँ पे भी Cl2 गैस लेफ्ट हैंड साइड पे है और 1 में भी Cl2 गैस लेफ्ट हैंड साइड पे है। 1 चाहिए, फिर 2 बार 2 चाहिए, फिर तो 2 1 बार चाहिए। 3 चाहिए। सर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई। हाँ सर, और So I इक्वेशन can say 4 is equal to 1. Okay, 1 plus. Now I need Cl minus aqueous form on the right hand side. Cl minus aqueous form right hand side पे कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इस इक्वेशन को भी रखना है इसी फॉर्म में, तो 2 कर देंगे। बट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज आई नीड 2 Cl minus here. So 2 Cl minus aqueous if I want I have to multiply this entire equation by 2. तो प्लस 2 into 2 हो जाएगा मतलब। सर फिर वो अभी दूसरे इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करके डालना पड़ेगा। So यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आ जाएगा 2 Cl minus gas on the left hand side. When I am multiplying this equation by 2, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 2 Cl minus gas आ जाएगा। अब लेकिन ये तो मुझे नहीं चाहिए। फाइनल इक्वेशन में क्या 2 Cl minus gas है? यहाँ पे नहीं है, तो उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या कट करें? जाएगा। हटाने के लिए थर्ड इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो फिर ये और ये कट जाएंगे। So plus 2 into 3. So these all are applications of Hess law. ऐसा हो जाएगा। Therefore, delta H4 will be equal to delta H1 plus 2 times delta H2 plus 2 times delta H3. करो और आंसर बताओ मुझे। Yes, now everybody has given the correct answer. So if I put the value 240 plus 2 into this plus 2 into minus 349. This is the final answer. Okay. तो ऐसे आपको फॉर्म करने हैं इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस।
solve this. Okay, start this. Okay. सर पर आपने तो लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव लेने बोला था, हाँ, नेगेटिव लेना है, करेक्ट. तो फिर वो नेगेटिव लेंगे तो फिर आंसर वो नहीं आएगा. क्या आएगा आंसर? सर वो 788 माइनस 784 किया तो 4 आता है. हाँ, तो करेक्ट है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? सर पर आपने नेगेटिव लेने बोला तो माइनस 788 माइनस नहीं 784. नहीं नहीं, नहीं. Yeah, that's why I've given this question. There must be some mistake. I mean, there must be some confusion. Okay, so lattice enthalpy is always negative. Okay, so accordingly, our equations will also be there. I mean, we have to follow the same uniformity. Don't change anything. So equations form करेंगे पहले हम लोग. तो equation 1. Okay. Lattice enthalpy क्या है? वो यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा. This is lattice, right? तो ऐसे होते हैं examples of reactions for lattice enthalpy. यानी 1 mole of the product should be formed on the right hand side. So क्या करेंगे यहाँ पे? किसका है? NaCl का lattice है, तो Na plus gas plus Cl minus gas. Right. This will represent the equation for lattice enthalpy. And lattice enthalpy is always negative. Delta H1 is equal to, what is lattice enthalpy given here? 788 kilojoules. So I'll Minus take it 7. as minus 788. Correct. Any doubt anybody has?
हो गया इक्वेशन 1. Second, what is the second one? Enthalpy of hydration is minus 784. Hydration के लिए क्या होता है? Ions. Ions should be in gaseous form. Ions must be in gaseous form on the left hand side of the reaction. Correct? And the ions must be in aqueous form on the right hand side of the reaction. Right? Any doubt? अब टारगेट इक्वेशन फॉर्म करना है हमको. टारगेट इक्वेशन. टारगेट इक्वेशन क्या है? फाइंड आउट हीट ऑफ सॉल्यूशन. हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्ट को लो सॉलिड में और उस सॉल्ट को लो एक्वस. दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन. But I can also say that this will split as ions. So I can write the same thing in this manner. ये हो गया हमारा टारगेट इक्वेशन. डेल्टा H3 इसका वैल्यू है, पता नहीं क्या है. अब 3 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे हम लोग? बोलो अभी 3 तक पहुंचेंगे कैसे? सर 2 और 3 तो सेम ही हो जाएंगे ना? कैसे? सर Na प्लस प्लस CS माइनस तो NaCl सॉलिड होगा ना? ये गैस है ना इसमें लेफ्ट हैंड साइड. सर फर्स्ट इक्वेशन से तो वही मिल रहा है ना? बट हाउ विल यू रीच द थर्ड इक्वेशन अनलेस आई मीन 1 and 2 दोनों ही चाहिए ना तुमको. You will need both the equations to reach the third equation, right? सर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट करना इसका पड़ेगा. RHS तो जो है सब्ट्रैक्ट कर दो. So now what will we do? टारगेट -1 तक पहुंचना है. टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? देखो टारगेट में क्या है? सॉलिड NaCl है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ऐसे इक्वेशन चुनो जहां पे सॉलिड NaCl है लेफ्ट हैंड साइड पे. पर सॉलिड NaCl हमारे इसमें है राइट हैंड साइड पे, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा. सो आई कैन से -1. रिवर्स का मतलब होता है -1. क्यों -1? ताकि NaCl सॉलिड लेफ्ट हैंड साइड पे मिले. अभी NaCl सॉलिड राइट हैंड साइड पे, तो NaCl सॉलिड हमको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, इसके लिए -1. और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे? वैसे का वैसे रखेंगे, बिकॉज एक्वस चाहिए राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे भी चाहिए एक्वस राइट हैंड साइड पे. सो 2 विल नॉट बी चेंज्ड. हो गया. Therefore, delta H3 will be minus of delta H1 plus delta H2. डेल्टा H1 का वैल्यू क्या है? -788. डेल्टा H2 is how much? -784. These are the values to be substituted. Minus will become +788, and this plus minus will become minus. Answer will be positive. सर आप एक बार टारगेट इक्वेशन का समझा सकते हो?
टारगेट इक्वेशन हमारा क्या है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट हीट ऑफ सॉल्यूशन. If I go back to the first page of this PDF, I mean Word document, then I will see the equations for solution. Enthalpy of solution में क्या लिखा है मैंने examples में देखो, ये सबके सब enthalpy of solution को depict करते हैं. That means Yes, what? sir. जिस चीज का आप कर रहे हो dissolution, solution. Okay, by the way, solution is also called dissolution. So don't get confused, हाँ? Dissolution भी हो सकते हैं. So solution Okay, is same as dissolution. तो क्या होता है, aqueous होना चाहिए राइट हैंड साइड पे, तो aqueous लिख दिया. ऊपर जा सकते हैं. हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर मैंने aqueous लिखना पड़ता है राइट हैंड साइड पे. तो aqueous अगर लिखना पड़ता है राइट हैंड साइड पे, it is as good as writing the two different ions in the aqueous form. जैसे अगर आप फोर्थ एग्जांपल के लिए देखेंगे तो I can write like this also for better clarity. ऐसे लिख देंगे. Okay, sir. तो वही क्या है मैंने, जैसे यहाँ पे देखो इस केस में इसको NaCl aqueous और I can write it as okay. Okay, sir. तो वही है, सर इक्वेशन को रिवर्स करते तो डेल्टा एच डेल्टा एच भी माइनस हो जाता है. यस, तो वही किया. टारगेट इक्वेशन ये है हमारा भी, बिकॉज डिसोल्यूशन है. किसका डिसोल्यूशन बोला है, NaCl सॉलिड का. तो उस वो तो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा ना, इसके लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है. और सोल्यूशन में डाला है तो ऐसा मिल जाएगा aqueous forms में ions. Now to reach this equation we have to make use of these two. Okay, because hydration का मतलब होता है गैस टू aqueous. देखो ये गैस है, ये हाइड्रेशन है, गैस टू aqueous. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो डेल्टा एच का वैल्यू चेंज हो जाता है कैसे, इक्वेशन अगर हमारा रिवर्स हो जाए तो डेल्टा एच भी माइनस हो जाता है. अगर सर इक्वेशन को ऐसे क्वेश्चन हम बिना इक्वेशन फॉर्म करके नहीं कर सकते. मेंटली कर सकते हो तो करो, बट अभी उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत. अगर देखो दो इक्वेशन से तो मेंटली आप कर सकते हो, अगर 5-6 इक्वेशंस होंगे तो जेई मेन में ऐसा भी आ सकता है, एक इक्वेशन में 5 इक्वेशंस देकर रखेंगे और बोलेंगे फॉर्म द टारगेट इक्वेशन. तो 5 इक्वेशन से तो मेंटली नहीं सर कर बस वो पाएंगे. दोनों को ऐड कर दिया तो हो जाएगा ना. वो तो दो ही थे ना, इसके लिए ऐड नहीं किया ना, सब्ट्रैक्ट किया. इट इज -1 + 2, नॉट 1 + 2, इट इज -1 + 2. तो सब्ट्रैक्ट हुआ ना, मतलब 2 से 1. -1 + 2 मतलब क्या, आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 2 से. सो -1 क्यों किया यहाँ पे हम लोगों ने, बिकॉज मुझे NaCl सॉलिड लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए था. तो इक्वेशन को रिवर्स करने का मतलब होता है माइनस, और डेल्टा एच भी इसके लिए माइनस हो गया. सो माइनस ऑफ डेल्टा H1 यूज किया आप लोगों ने यहाँ पे. इन शॉर्ट इक्वेशन अगर रिवर्स होता है तो डेल्टा एच का वैल्यू भी साइन चेंज कर देता है. नाउ ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर ओन. Try this one.
Okay, start this. I'm giving you 3 minutes. Try to finish. सर थोड़ा सा नीचे थ्रो कर सकते हैं?
Okay, let's solve this. Let's form equations. Equation number 1. Dissolution of this in a large volume of water. Dissolution मतलब क्या? Okay. First, CaCl2 dot 6H2O. इसका ही डिसोल्यूशन बोला है ना. So dissolution of this in a large volume of water is endothermic to the extent of 3.5 kilocalorie per mole. मतलब इसको जब मैं पानी में डिसॉल्व कर दूंगा excess water में, तो I can write this like this. Dissolution का तो वही होता है, बस उसको ही आपस में लिख दो. And इसका delta H is given as endothermic है यानी plus and extent of 3.5 kilocalorie per mole. Second, क्या है? एक रिएक्शन देके रखा है ये वाला. This is given to you and they have given that delta H for this is minus 23.2 kilocalorie. तो वो लिखते हैं. इसका delta H2 is given as minus 23.2 kilocalorie. What is the target? Target equation. Target equation क्या है? वो देखना. Find the heat of solution of calcium chloride anhydrous in a large volume of water. इसको डाल दूंगा पानी में. ओके, तो ऐसा आ जाएगा. ओके, यहाँ तक क्लियर होगा. Now, if I look at the first equation, this one, number 1 जो क्या है, ध्यान से उसको राइट हैंड साइड की ओर देखो. राइट हैंड साइड की ओर अगर मैं देखूं उसको, can I say that this entire thing is aqueous because AQ लिखा है? And if that is the case, तो can I say that it is as good as saying, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये अपने सारे आयंस में स्प्लिट कर देंगे because excess water has been used. And water के अंदर नहीं भी लिखूं तो भी वो चलेगा. I can just remove that water part because water in water need not be written again. That means what I'm trying to say is this particular thing is exactly same as this particular thing. Correct?
दैट मीन्स चाहे वो .6H2O एक्वस आप लिखो या ना लिखो, एक्वस में लिखने की .6H2O एक्वस नहीं जरूरत है. इट बाय डिफॉल्ट मीन्स दैट एवरीथिंग इज एक्वस. तो वाटर भी वाटर में क्या लिखोगे फिर से, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. तो ऐसा सीधा हम लोग लिख सकते हैं. That means this is exactly same as this. That is CaCl2.6H2 aqueous. Right? So instead of writing like this, I can straight away write it like this also. सीधा ऐसे लिख सकता हूँ. क्यों? Because question has told me that it is dissolved in excess water. Excess word यूज नहीं किया उन्होंने. उन्होंने बोला है large volume of water. लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब समझ रहे हैं आपको, एक्सेस वाटर बोल रहे हैं. सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि इसको ऐसे लिखो या .6H2O एक्वस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्वस नाउ. लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर है. राइट? तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो. So I can say let this be equation 3. Equation 3. So this is nothing but same as CaCl2.6H2O aqueous. Because eventually it will get converted to this. Okay. Now, in order to reach my target, I can say that equation 3 is equal to equation 1 plus equation 2. सर अगर हम वो +6H2L नहीं डालते तो फिर वो नहीं होगा ना डेल्टा एच प्लस. हाँ. क्या? सर सेकंड इक्वेशन ठीक है, सेकंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम मतलब वैसे ही छोड़ते और वाला पार्ट नहीं लिखते तो फिर ही होगा. बट इट इज सेम ना, वेदर यू राइट दिस और यू राइट दिस. इसलिए तो और लिखा है बीच में. और का मतलब क्या है कि मतलब सेम है दोनों का. ये 6H2O एक्वस लिखने की कोई जरूरत नहीं है. कहने का मतलब ये है. क्यों? बिकॉज वो ऑलरेडी पानी के अंदर एच हो चुका है, तो उसको भी अलग से आप डॉट के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना. एवरीथिंग हैज बीन स्प्लिट कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ये एक्चुअली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अभी एक्वस में. पूरा सब कुछ पानी है, तो अलग से आप लिख सकते हो CaCl2 एक्वस. सर Ca प्लस प्लस 2Cl माइनस भी लिख हाँ, सकते वो भी लिख सकते हैं. यस, एग्जैक्टली, बिकॉज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज बीन यूज्ड. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लुक एट द वर्ड एक्सेस. एक्सेस के बदले में यहाँ पे बोला लार्ज वॉल्यूम, तो मतलब वही हुआ, एक्सेस का ही हुआ. लार्ज वॉल्यूम का मतलब होता है एक्सेस. तो एक्सेस जब भी बोल देंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एक्वस में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज वो पूरी तरह सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही.